Hello everyone, how are you all? Today we will deal with a very important topic of CPC, which is Order 23. Order 23 per se has three major topics that are to be dealt with for the mains examination. First one being the abandonment or withdrawal of the cases, and the second one being the compromise or the satisfaction, or so as to say adjustment by the parties, and the third one being the transposition of the parties. So these three are the major concerns which are related to Order 23, and these three you need to focus more upon for the mains examination. Howsoever, in today's question, we will be dealing with the compromise of the suit, and we will be dealing the procedure, the entire procedure that is related to compromise decree, and how we can secure the compromise decree. So let us see. So the question is, a party to the suit states in a court that the suit has been compromised. So discuss the procedure. So we have to mainly discuss the procedure regarding the compromise suit and the degree thereof for securing an order recording the compromise and getting a degree in the accordance thereof. And this has come in Punjab Judiciary 2019. And so let us see the answer. First and the foremost thing being that what is a compromise of the suit. So basically, our Order 23 does not per se deals with the compromise only. It deals with various other topics that you need to state about under Order 23, which are abandonment, withdrawal, compromise, satisfaction, or adjustment. However, we will deal with the compromise per se, and compromise itself consists of two subheads, and which are satisfaction और एडजस्टमेंट. वी विल डील विद इट विद द हेल्प ऑफ द केस लॉ. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्डर 23 रूल 3 का इम्पोर्टेंस क्या है. सो कॉम्प्रोमाइज ऑफ द सूट इज बेसिकली समझौता. However, we need to understand why do compromise of a suit is given importance and why it is given recognition in our code. So we need to understand कि हमारा जो सिविल जस्टिस सिस्टम का बी ऑल एंड ऑल है, एक बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज एन एंड टू लिटिगेशन. स्टेट चाहता है कि जल्दी से जल्दी एंड टू लिटिगेशन हो, एंड इट इज ऑल्सो राइट टू स्पीडी ट्रायल, एंड दैट इज वाई दिस हैज कम इन टू फोर्स इन सीपीसी, बिकॉज ये हमारा नेसेसिटी का प्रिंसिपल इन्वोक करता है, और नेसेसिटी के बेसिस पे हमें एक कॉम्प्रोमाइज ऑफ द सूट को recognition दिया गया है हमारे सीपीसी में. सो this case in हीरालाल मूलचंद वर्सेस रमन लाल, in this it was held कि जो ये पूरा ऑर्डर 23 रूल 3 का प्रिंसिपल है दैट इज कॉम्प्रोमाइज ऑफ द सूट, दिस इज रिलेटेड टू द जर्नल रूल. इसका मतलब है जो कोर्ट डिसाइड कर सकता है वो पार्टीज भी डिसाइड कर सकती है. सो दिस वाज बेसिकली हेल्ड इन दिस केस, एंड फर्दर इट वाज एक्सटेंडेड कि ये जो डिस्क्रिशन है ना, ये पार्टीज की है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, because they are, because जो plaintiff होता है he is the dominus litis and he should know that how the suit should proceed. अगर उसे चाहिए कि हम compromise करना चाहते हैं, they can always compromise. Okay, so parties can always compromise, it is discretionary. And further moving on to procedural requirements of the रूल 3. सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जो हमारा है पुष्पा देवी भगत वर्सेस राजेंद्र सिंह 2006 सुप्रीम कोर्ट. इसमें हमें एग्जैक्टली इन डिटेल बताया गया था कि रूल 3 का मतलब क्या है और उसके बाइफर्केशंस क्या है. तो रूल 3 इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. ठीक है, तो रूल 3 में दो पार्ट्स क्या है, एक है एडजस्टमेंट एंड सेकेंड वन बीइंग द सेटिस्फैक्शन. सो दीज आर द टू कीवर्ड्स यू नीड टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड अबाउट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बीइंग द एडजस्टमेंट. तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, इट मीन्स म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज. तो जब भी पार्टीज आपस में डिसाइड कर लेती हैं उसको एडजस्टमेंट बोला गया है, एंड इट कैन बी रिगार्डिंग द होल ऑफ द एग्रीमेंट और इट कैन बी पार्ट ऑफ इट, कि हम कुछ एग्री कर रहे हैं और कुछ एग्री नहीं कर रहे हैं. अगर वो सब एग्रीमेंट करते हैं वो भी एडजस्टमेंट का पार्ट है, अगर कुछ पार्ट्स एग्री करते हैं दैट कैन ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट. एंड देन दिस एग्रीमेंट शुड बी अ लॉफुल वन, दैट इज टू से इसके जो सारे हमारे लॉ के प्रिंसिपल्स है, लॉ के इंग्रेडिएंट्स है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंग्रेडिएंट्स है, एग्रीमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, वो सब फॉलो होने चाहिए. इट शुड बी अ लॉफुल वन, इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन an unlawful agreement. And then the very important requirement is that it should be in writing.
So it is important that it should be in writing. Otherwise, this cannot be an adjustment. It cannot be orally. Okay. And also it should be signed, plus इसका sign भी होना चाहिए. And then same shall be recorded by the court. तो इस adjustment के basis पे court record करेगा अपने reasons, and then it shall pass a decree on the same. जो भी parties के बीच में adjustment हुआ है उसके basis पे हम एक decree pass कर सकते हैं court. So this is the first part relating to adjustment of the suit. Second one being the satisfaction. तो satisfaction क्या होता है? अब हमें satisfy करवाना है, किसको करवाना है? Plaintiff को करवाना है. क्यों करवाना है? क्योंकि plaintiff is the one who is putting the suit. He wants some relief. अगर उसको वो रिलीफ दे दिया जाता है बाय डिफेंडेंट तो सूट खत्म हो जाएगा. मतलब जो उसका रिलीफ था उसको मिल गया, तो देर इज नो नीड टू प्रोसीड फर्दर. अगर प्लेंटिफ सेटिस्फाइड है, जो भी डिफेंडेंट उसको दे रहा है या उस एग्री कर रहा है, इट इज अ सेटिस्फेक्शन बाय द डिफेंडेंट. ओके. तो ये जो सेटिस्फेक्शन होगी, दिस कैन ऑल्सो रिलेट टू होल, इट कैन ऑल्सो बी होल और पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट. तो ये कुछ भी हो सकता है, सेम एज एडजस्टमेंट. Howsoever, the only difference between the adjustment and satisfaction is that satisfaction need not be in writing. Adjustment has to be in writing plus signed. However, जो satisfaction है उसको it is not necessary to be in writing, so this can be done away with. And then further the same thing, when the subject matter is completely satisfied, that is to say कि जो भी subject matter, जो भी उसका relief था, जो भी वो seek कर रहा था, जो भी उसके prayer थी plaintiff की, वो satisfy हो जाता है, तो court will see, court will look कि okay, this thing whatever plaintiff was asking for is satisfied, now I can pass the decree on the same. तो इसकी डिक्री आती है, एडजस्टमेंट की भी डिक्री आती है एंड सेटिस्फैक्शन डिक्री आती है. एंड दिस थिंग itself is known as the compromise decree. There are two parts and both lead to a compromise, and so further we can call it a compromise decree. Okay. So in this decree based upon the adjustment or satisfaction, अब ये क्या होता है कि जो रिलीफ प्लेंटिफ ने मांगे हैं ये जरूरी नहीं है कि वही रिलीफ उसे मिले. अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ एडिशनल रिलीफ भी मिलना चाहिए, तो इट कैन ऑलवेज गिव एनी एडिशनल रिलीफ. बिकॉज हम प्रेयर में हमेशा लिखते हैं कि एनी अदर रिलीफ इफ एनी. तो जो कोर्ट डिजायर करता है इट इज डिस्क्रिशनरी. कोर्ट कैन ऑलवेज गिव एनी एडिशनल रिलीफ इफ इट थिंक्स सो. ओके. सो दिस विद दिस इट एंड्स आवर दिस क्वेश्चन. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है. तो अब क्या है कि जो फर्दर है वो हम प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स में ऐड कर भी सकते हैं, दैट इज अप टू यू. बट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन ऑल्सो कम इन शॉर्ट क्वेश्चन और दे कैन कम इन अ प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन और इन एडिशन टू वेरियस अदर टॉपिक्स. उसके साथ भी एड ऑन करके एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. सो सबसे पहले क्या होता है कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि जो कंसेंट डिक्री है या कॉम्प्रोमाइज डिक्री है, डज इट ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा. सो द क्वेश्चन वॉज आंसर्ड इन दिस केस. सुब्बा राव के केस में इसमें हेल्ड हुआ था कि जो कॉम्प्रोमाइज डिक्री है ना, वो उस पे कोर्ट का एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है. ठीक है. इट इज नाइदर पास्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस द नॉर द कोर्ट हैज अप्लाइड द जुडिशियल माइंड. तो जो डिसीजन है ना वो कोर्ट का नहीं है. इट इज जस्ट द एग्रीमेंट, जस्ट द मियर एग्रीमेंट जिसपे कोर्ट ने अपना डिक्री पास किया है. सो सिंस इट इज नॉट ऑन मेरिट्स, so the decree that is passed does not operate as res judicata. तो जो डिक्री होती है compromise decree, this is not operating as res judicata. We can always institute a fresh suit on the same subject matter because the court has not applied its judicial mind and it is not passed on a merit. ठीक है. And then there is this question, this can always come in appeal or as a further separate question, that कि अगर आपको अपील कंसेंट डिक्री की अपील करनी है तो अपील लाई करती है या नहीं करती. नो व्हाट यू आर गिविंग योर कंसेंट फॉर. अगर आपने कंसेंट दी है तो आप आपके वर्ड्स पे स्टेप बैक नहीं कर सकते हैं. इट इज काइंड ऑफ स्टॉपल दैट इज अप्लाई. सो देयर इज नो अपील फॉर द कंसेंट डिक्री. तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है हमारा सेक्शन 96 सबसेक्शन 3 ऑफ द कोड सेज दैट अपील नहीं लाई करेगी कंसेंट डिक्री की. ठीक है. हाउएवर देयर हैज टू बी अ वे आउट. अगर कंसेंट डिक्री की अपील नहीं लाई कर रही है, सो इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट, एक तो है कि उस पर रेस जुडिकेटा नहीं लगता है, यू कैन ऑलवेज पुट अ फ्रेश सूट. एंड सेकेंड सेफ गार्ड हैज बीन एडेड बाय this 1976 Amendment Act, which is the proviso to Rule 3
ऑफ ऑर्डर 23, जिसमें ये बोला गया है कि अगर देर इज एनी सॉर्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज जिसकी वजह से वो एडजस्टमेंट या सेटिस्फेक्शन पे नहीं आ सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज टू से कि कंसेंट डिक्री पास नहीं हो रही है, तो कोर्ट कैन ऑलवेज प्रोसीड विद द रेगुलर सूट विद द ऑर्डिनरी मेथड कि ठीक है, अगर कंसेंट is not possible between the parties, so we can always proceed with the ordinary suit and कोई adjustment देने की भी ज़रूरत नहीं है. So this is an added safeguard. Okay, and then further अनलॉफुल एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज. सो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो उस पर हमेशा वो लॉफुल होना चाहिए, वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए. सो इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है. और एक एक बट एक एडिशनल चीज़ इसमें यहाँ पे याद रखनी है, अगर कोई एग्रीमेंट पास हुआ है उसके लिए कोई सूट लाई नहीं करेगा कि टू सेट असाइड द डिक्री ऑफ कॉम्प्रोमाइज कि वो लॉफुल नहीं था, ठीक है. सो देर इज नो फर्दर एक्शन यू कैन टेक आफ्टर यू हैव वंस कंसेंटेड एंड देन अ डिक्री इज पास्ड, ठीक है. तो उसके बाद ना तो अपील लाई करती है और ना ही आप सूट लाई कर सकते हो टू सेट असाइड द डिक्री कि वो लॉफुल नहीं थी. क्यों? क्योंकि आप ही ने कंसेंट दी थी. इफ आपने कोर्जन से एंटर किया, मतलब फ्रॉड से एंटर किया, किसी भी प्रोविज जो अनलॉफुल था उससे एंटर किया, तो आपको पहले नहीं करना चाहिए था, ठीक है. नाउ द ओनली वे आउट इज कि यू हैव टू पुट अ न्यू सूट, यू हैव टू पुट अ फ्रेश सूट बिकॉज एस जुडिकेट अप्लाई नहीं करता है. सो हाउ एवर यू कैन नॉट गो फॉर अपील और सेट असाइड सच डिक्री विच वॉज नॉट लॉफुल, ठीक है. तो ये है. फर्दर दिस कैन बी ऑल्सो अ क्वेश्चन कि रिप्रेजेंटेटिव सूट्स पे, तो रिप्रेजेंटेटिव सूट्स का हमने पढ़ा है ऑर्डर 1 में ऑलरेडी, वी हैव कवर्ड दैट. तो दिस कैन बी अ additional question over there in representative suits का question, और it can be a question over here also compromise decree में. तो question कैसे आएगा कि जो compromise decree है, अगर वो representative suit में compromise decree पास करना चाह रहे हैं तो is it allowed or not, ठीक है. तो ये क्वेश्चन आ सकता है. तो हाउ डू यू आंसर दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो रूल 3B में पहले तो ये बताया गया है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट्स कौन से हैं यहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्प्रोमाइज सूट. तो वहाँ पे बोला गया है 91-92 दैट इज पब्लिक न्यूसेंस और पब्लिक चैरिटीज, एंड देन ऑर्डर 1 रूल 8 दैट इज रिप्रेजेंटेटिव सूट्स इन्वॉल्विंग मैनेजर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. तो HUF का जो भी मैनेजर है दैट इज करता, ठीक है, जो टैक्स वगैरह पे कर रहा है वो, एंड एनी अदर सूट बाइंडिंग एनी अननेम्ड पार्टी. तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव सूट्स है जो कि इफेक्ट कर रहे हैं द इंटरेस्ट ऑफ सेवरल पर्सन, यहाँ पे क्या होता है कि आप कंसेंट डिक्री नहीं पास कर सकते हो, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल आपने कोर्ट की परमिशन ली है या फिर आपने सबकी परमिशन लेके फिर कोर्ट से परमिशन लिया. बट कोर्ट की परमिशन लेनी जरूरी है, ठीक है. अगर कोर्ट लीव ग्रांट कर देता है देन यू हैव टू सेंड नोटिस टू ईच एंड एवरी पार्टी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव सूट, ठीक है. क्योंकि अगर सबको नोटिस है तो देन ओनली यू कैन गो फॉर द कॉम्प्रोमाइज, अदरवाइज यू कैन नॉट गो फॉर द कॉम्प्रोमाइज डिक्री बिकॉज इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. क्योंकि सबको नोटिस नहीं है एंड एनी पार्टी मे बी एग्रीड पार्टी, तो इसलिए सबको सबकी परमिशन की जरूरत है फॉर पासिंग अ कॉम्प्रोमाइज डिक्री इन केसेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सूट्स. So that will be all for today. I hope you understood every part of the compromise decree per se and the procedure requirements. Thank you guys. Take care.